Hi, NCLEX RN aspirants. This is Sparsh Atwal and welcome to Smart Nursing Classes. So, here you are studying Sparsh Atwal's nursing concepts, basically NCLEX RN case studies. Let's begin our today's discussion with a motivation bolus. So, motivation bolus says persistence is not a one day miracle, it's a conscious choice translated into habit. So, with this sweet motivation bolus, we start up with our case study 2. So, are you ready for that? So, here we go. There is case study question number 1. So, nurse cares for 68-year-old male client who presents for a routine client appointment. So, that patient comes to us in an OPD. So day one notes say day one at 10 a.m. So it shows 68-year-old male means it's old client. He reports tiring easily, and when he goes out or when he walks for activities of daily living, he has been staying home because he's feeling tired. He's staying home and he's watching television, and also he reports difficulty in sleeping. So he's finding difficulty in sleeping. So it is probably orthopnea because while lying down he feels shortness of breath. So he awakens with shortness of breath in the middle of the night. Reports 8 pound weight gain over past 2 weeks since appointment. So weight gain is there. States normal appetite. Denies chest pain or back pain. States he's anxious about his condition. No allergies. Current medications are enalapril, that is ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor, hydrochlorothiazide, that is a diuretic, digoxin, a cardiac glycoside, 0.125 mg OD per orally. So the assessment findings are, we will just mark the abnormal assessment findings. Is alert and oriented, is oriented to person, place, and time, appears anxious, heart rate is regular at 104, that's slightly increased. 4 plus pitting edema, so this shows fluid accumulation and pre-tibial edema. Respiratory rate is unlabored, it's fine, but there are crackles in the basis bilaterally. What does this means? If there are crackles, तो crackles का मतलब है there is some fluid, right? So there is fluid accumulation in the lung. So दिमाग में चल गया होगा fluids in the lung, and all the cardiac symptoms, it is more likely to be a heart failure. But let's discuss. Abnormal, soft, non-tender bowel sounds are active. Skin is warm, dry, and intact. Frequent urination is there. Small amount, clear yellow urine. So frequent urination can be due to hydrochlorothiazide. So let's see the vital signs. So vital signs में क्या abnormality है? 10 a.m. उसके vital signs लिए temperature was normal, pulse is bit high, respiratory rate is bit high because lungs have fluid in them. BP is high because of the fluid accumulation in the body. Pulse oximetry पे SpO2 is 93%, that is low on the lower side. Weight is 215 pounds or 97.7 pounds. So here the question comes to you, which four findings are most concerning? He is anxious. So we can make it out that anxiety could be due to some of the reasons. It could be due to hospital visit or clinic visit. 4 plus pitting edema and pre-tibial edema. It shows there is fluid accumulation. So I would say this is concerning stuff. If there are crackles in bilateral lung bases, so fluid is there, it is concerning, right? And frequent urination, since the person is on diuretics, that is more likely to be there. Appetite उसकी ठीक है, so it's not of any concern. He awakens at night with shortness of breath. So रात को dyspnea हो रहा है by lying down, orthopnea is there, तो there is some गड़बड़. वेट गेन है तो वेट गेन भी कंसर्निंग है. बाकी अदर सिम्टम्स आर हार्ट रेट इज ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल, सो हम उसको नहीं कंसिडर कर सकते.
बिकॉज अगर हम प्रायोरिटी वाइज देखें, 4 फाइंडिंग्स दैट आर मोस्ट कंसर्निंग, कंसर्निंग तो हमारा यूरिनेशन भी है, बट यूरिनेशन से ज्यादा बाकी पैरामीटर्स कंसर्निंग है। तो इसीलिए हम हार्ट रेट को भी इतनी प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं दे रहे, सिंस इट्स जस्ट 2 यूनिट्स अबव दैट, राइट? Okay, we'll proceed with the question number 2. So there is a same data. I hope you would be remembering that. तो यहाँ पे क्या है, टू रिस्क फैक्टर किस चीज का है? तो रिस्क फैक्टर्स, उसका पेशेंट का वेट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ और देख लेते हैं। तो वेट गेन हो रहा है पेशेंट का, क्रैकल्स हैं, और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है। तो व्हाट डज दिस मीन? पेशेंट को किस चीज का रिस्क है? और पेशेंट इज ऑल्सो ऑन क्लॉरथायाजाइड और इनालाप्रिल। इनालाप्रिल से क्या होता है? इनालाप्रिल से पोटेशियम के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज एस इनहिबिटर है। क्लॉ हाइड्रोक्लोरथायाजाइड से यूरिनेशन आती है, तो यूरिन के साथ व्हेन वेयर फ्लूइड गोज, इलेक्ट्रोलाइट्स आल्सो फ्लोज अलोंग साइड, ठीक है? और डिजॉक्सिन, क्योंकि डिजॉक्सिन चल रही है, अगर पोटेशियम के लेवल्स कम हो गए तो भाई साहब इसका डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो पोटेशियम के लेवल्स भी हमको सही रखने हैं। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड विल वेस्ट पोटेशियम लेवल्स। तो सी हाउ इंसाइटफुल यू शुड बी देयर व्हेन यू आर सॉल्विंग केस स्टडीज। तो हम केस स्टडीज की बात करते हैं, क्या चीज का रिस्क है? तो रिस्क होगा उस पर्सन को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होने का, रिस्क होगा फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड होने का। ये कहाँ से पता चला? क्योंकि उस पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, बीपी ज़्यादा है, पल्स ऑक्सीमीटर ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, और उसकी जो है अम, अगर हम बात करें उसका इडीमा है, ठीक है, इडीमा इज 4+। तो ऑल ऑफ दिस आर द रिस्क फैक्टर्स। सो वी विल प्रोसीड अहेड in this question number 3, right? There are some of the lab values. Lab values are given, right? तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल इज ऑन हायर साइड, यहाँ पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज नॉर्मल, क्रेटिनिन इज नॉर्मल बट स्लाइटली एलिवेटेड, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हेमाटोक्रिट इज 34.6, दैट इज फाइन। हीमोग्लोबिन इज फाइन। पोटाशियम इज 2.8। The most concerning electrolyte imbalance is potassium. Also, I told you कि पेशेंट डाइजॉक्सिन ले रहा है, डाइजॉक्सिन लेते वक्त पोटेशियम कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी आ जाएगी। तो हेयर क्लियर कट यू कम टू नो abnormal lab finding nurse should address first should be potassium. Is that right? I hope you are understanding the concepts that NCLEX wants you to learn. So we will move ahead to the next question. Case study question number 4. So here are the same investigation. So what are the teachings that will nurse include in while he is going home, right? So she should teach, क्या क्या चीजें टीच करनी पड़ेंगी नर्स को? She should know that. So they are asking you whether you know what all holistic education should be given. So first is weigh yourself every day at same time in same clothes. That's right. After first voiding, patient को बोलना है same clothes में हर रोज अपना बॉडी वेट चेक करना है, बिकॉज वेट गेन इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ डिटियोरेशन in the clients who are having heart failure and who are having fluid overloads. Second is increase intake of oral fluids to stay hydrated. नहीं भाई साहब, हमने यहाँ पे फ्लूइड इनटेक बढ़ानी नहीं है, फ्लूइड डीलिमिट करना है। ऑलरेडी 4+ पिटिंग एडिमा है, लंग्स में फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ है। नो, limit sodium in diet to no more than 2 grams. That is right thing. She is educated nurse. Immediately report 1 pound weight gain in 1 day. So we will not report this until unless it is 2 to 3 pounds within 24 hours. So that's not right stuff. यहाँ पे उन्होंने आपके वेट के साथ खेला हुआ है ना, whether you know the right amount according to American Heart Association. Limit exercise and physical activity. No, we never say that. We say do the exercise but up to the level that you can tolerate. Take prescribed medicine every day even if feeling better. Yes, if a patient feels better with medicines, if he stops that, he's more likely to go again into that vicious cycle. Eat foods high in potassium. Yes, क्योंकि पोटेशियम हमको हाई रखना है, नहीं तो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ओके, तो केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 5, तो व्हाट इट कम्स सेम थिंग। ओके,
देयर आर चेंजेस इन मेडिकेशन ऑर्डर्स। तो डॉक्टर ने क्या किया यहाँ पे, डॉक्टर ने ना पहले पेशेंट को क्या चल रही थी मेडिसिन, हम देख लेते हैं। यहाँ पे इनालाप्रिल चल रही थी, हाइड्रोक्लोरोथाइज़ेड चल रही थी, डाइजॉक्सिन चल रही थी। उसने बोला डाइजॉक्सिन स्टॉप कर दो, दैट इज फाइन, डाइजॉक्सिन क्योंकि टॉक्सिसिटी हो सकती है, स्टॉप करवा दी। सेक्यूबिट्रिल और बेल्साटिन स्टार्ट करवा दी। यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए देयर आर 1 and 2 ACE इनहिबिटर्स, ठीक है। और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन बोल दी उसको 1500 ml पर 24 आवर्स। रोज उसको बॉडी वेट चेक करने के लिए बोला और 3 वीक्स के बाद फॉलोअप के लिए बुलाया। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चनिंग में हम क्या क्या चीज लाइक वी हैव टू डू, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस शुड नर्स टेक इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन मेडिकेशन ऑर्डर। यहाँ पे क्या क्या बोलना है, ठीक है। क्या बोल सकती है एक नर्स टू अ डॉक्टर, है ना। तो क्वेश्चन द न्यू मेडिकेशन ऑर्डर, ये शीट क्वेश्चन बिकॉज दो एस इनहिबिटर्स इकट्ठे चला दिए हुए हैं, तो मे बी एक की डोज बढ़ा के काम चल सकता होगा, वाई टू इंक्रीज द पिल लोड। एजुकेट द क्लाइंट अबाउट स्टॉपिंग डिजॉक्सिन, क्योंकि डिजॉक्सिन स्टॉप करना उसके बारे में पेशेंट को बताओगे, सिंस डॉक्टर हैज डन दैट। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू स्टार्ट द न्यू मेडिकेशन टुडे, ठीक है। तो अगर पेशेंट ने ऑलरेडी वो टैबलेट ले लिया है तो उसको टुडे स्टार्ट करने के लिए नहीं बोलोगे, उसको बोलोगे यू डू इट द नेक्स्ट डे, राइट। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो वी वोंट बी डूइंग दिस। टेल क्लाइंट टू टेक एन एडिशनल डोज ऑफ डायूरेटिक टुडे, एडिशनल डोज नहीं दिलवानी है। रिक्वेस्ट दैट प्रोवाइडर ऑर्डर अ पोटेशियम सप्लीमेंट, देखो पोटेशियम कम है तो पोटेशियम के सप्लीमेंट डलवा सकते हैं। आस्क द डाइटिशियन टू मीट विद द क्लाइंट, ठीक है। डाइटिशियन को भी बोल देंगे क्योंकि यहाँ पे बोला बिगिन लो सोडियम डाइट, ठीक है। तो डाइटिशियन कैन बेस्ट टेल, और साथ में उसने न्यूट्रिशन और डाइटिशियन कंसल्ट भी लिखा है डॉक्टर ने, ठीक है। सो यू विल गो फॉर दैट, ओके। सो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, determine if the client owns a weighing scale. So yes, you will make it sure too, because patient is going home. So moving ahead to the next question. Question number 6 of 6. All of the data is same. On day 14, the nurse calls the client to follow up. So we will see how the things vary. Day 14 पे client comes to the clinic, reports nagging cough and pink tinged sputum. पहले नहीं था, अब आ रहा है। तो पिंक टिंज्ड स्पूटम का क्या मतलब है कि हाँ पेशेंट को जी अब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर आ गया। डिफिकल्टी कैचिंग ब्रेथ, उसको डिस्निया भी होना शुरू हो गया। रिक्लाइनर पे स्लीप कर रहा है बिकॉज ही कैनॉट ब्रीथ वाइल ही इज लेइंग डाउन इन बेड। पहले सो रहा था बट अब प्रॉब्लम आ रही है। नोट्स दैट वाइफ चेक्ड पल्स एंड इट्स 90। रिपोर्ट्स भूख नहीं लग रही है, पहले लग रही थी, है ना। भूख भी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही, रात को 2 बार उठ रहा है यूरिनेट करने के लिए, पहले नहीं इतना उठना पड़ रहा था। ही इज वरीड अबाउट हिज हेल्थ, वरीड पहले भी था। एडवाइज्ड क्लाइंट दैट वर्सनिंग सिम्टम्स नीड इमीडिएट अटेंशन। स्पोक विद द वाइफ हु अग्रीड टू टेक हिम टू द ईआर। तो ईआर में भेज दिया उसको। वाइटल साइंस क्या क्या है, वाइटल साइंस अगेन उसका पल्स रेट इज पहले जैसा, रेस्पिरेटरी रेट पहले जैसा, बीपी बढ़ा हुआ है, पल्स ऑक्सीमीटर पे कम आ रहा है, बॉडी वेट उसका बड़ा ही है, ठीक है। पोटेशियम 2.8 है। हाँ जी, अब मुझे बताओ, पहले पेशेंट रिक्लाइनर पे नहीं सो रहा था, अब रिक्लाइनर पे सो रहा है। इट शोज दैट कंडीशन हैज वर्सनड। नैगिंग कफ थी पहले, ठीक है, बट नैगिंग कफ से भी वर्स हो गया अब। पिंक टिंच स्पूटम पहले नहीं था तो कंडीशन वर्स हो गई। डिफिकल्टी कैचिंग ब्रेथ, पहले उसको सांस लेने में वैसे प्रॉब्लम नहीं आती थी, लाइंग डाउन पे आती थी, अब तो सांस लेने में प्रॉब्लम आ गई, वर्स हो गया। पल्स, पल्स जो है पल्स अनचेंज रही। पल्स जो है, पल्स की अगर हम बात करें, लेट्स कंपेयर पल्स हेयर। तो पल्स उसने यहाँ पे देखी, पल्स इज कहाँ गया, तो पल्स इज 90, ठीक है। पहले 102 थी, पल्स 90 है, तो इसका क्या मतलब है, इट हैज इम्प्रूव्ड। लैक ऑफ एपेटाइट पहले नहीं थी, अब होगी, तो कंडीशन खराब हो रही है। गेटिंग अप एट नाइट टू यूरिनेट पहले नहीं थी, अब करनी, अब हो रही है उसको, तो यहाँ पे दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। एंड थर्स्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और थर्स्ट उसकी अनचेंज्ड है, पहले भी नहीं लग रही थी, अब भी नहीं लग रही है। तो यहाँ पे जो मैंने हर चीज क्रॉस की है ना, तो इट मीन्स मैंने इसको टिक किया है, ठीक है।
टिक ही किया हुआ है, ये पॉइंट्स हमारे इंक्लूड होंगे। 1 2 3 हो गए और फोर्थ ये 5 6, ठीक है। दैट इज हाउ यू सॉल्व योर केस स्टडी। So with this, we end our discussion. Hope you liked the discussion. We will come up with more case studies. Thanks and keep studying. Wish you all the best with your NCLEX RN preparation. Thank you.